Welcome to Set the Trend with Shalini Bhatia in collaboration with InstaFeed. Today we have two very special guests, Yashika from Yashika Makeovers and Srishti from Janith. Welcome to Set the Trend with Shalini Bhatia. Welcome, girls. Welcome to our chat show. Are you excited? Super excited. Super excited. So, guys, we have two beautiful ladies. She is Srishti from the Janith. She is very talented. I'm still wearing her outfit and I'm looking damn good. And thank you so much, Srishti, for this beautiful outfit. Thank you, darling. You are such a gorgeous lady. Thank you, love. And we have another beautiful lady, Yashika Makeovers. I'm looking damn gorgeous just because of her makeup. Thank you, Yashika. You're already beautiful, my love, and of course, makeup makes you more beautiful. Thank you. So, just tell me about your journey, guys. आप बताओ सृष्टि, कैसे मैंने सुना है कि जैसे भाई आपके हस्बैंड का पहले से ही ब्रांड था अपना मेन वेयर था, तो आप कैसे मन किया कि यार अब इसमें थोड़ा सा हम वुमेन वेयर ऐड ऑन करते हैं? So basically, Shalini, the Zenith brand is like 10 years old when my Okay. husband started it. Okay. And 3 years back, like I used to do job. I used to work in communications team of various organizations. Okay. And then there was again a passion for fashion. fashion, And right? that's the need when I felt कि नहीं अपना ही कुछ करना करना चाहिए. है, right. स्टोर था, बैकअप था, सब कुछ था, information बस थी. एक वो चाहिए था कि करना है. हाँ. पैशन था तो उसको कन्वर्ट कर लिया करियर में. एंड आई तो हाउ मच ईयर, कितने साल हो it's गए been आपको? only 2.5 years. Oh my God, And, guys, just 2.5 years में she has a reputation, she has a name in the industry. Yeah, बहुत and that कम too- time में है ना? And that too, I would say उसमें 1.5 साल तो कोविड में ही चला गया. Right, right. But then I feel that because of all blessings of you all and the support and love that audience has given, I have like grown Because your really work well. is amazing ना, as you Yeah. can see her designs are so beautiful, so unique, and सब casual wear है जो regular हमें चाहिए होता है ना? Mostly casual wear, हाँ. but yes, when clients come to the store, we customize as per Okay, their as per their requirement, huh? requirements. We customize cocktail outfits and gowns as well. Okay, that's great. So यशिका, आप बताओ आपको कितने साल हो गए और आपका कैसे मन किया कि चल यार मेकअप आर्टिस्ट बनते हैं? Basically, I was pursuing my MBBS. I was about to become a doctor. MBBS से मेकअप आर्टिस्ट. Makeup artist फर्स्ट टाइम is सुन रही हूँ never मैं. ever my profession. I'm belonging to typical बनिया family जहाँ लड़कियाँ घर के बाहर भी नहीं जा सकती. बिल्कुल बिल्कुल. So my husband got severe brain hemorrhage in 2010. So Okay. मरता क्या नहीं करता वाली condition में I switched on Okay. with this industry, but today I'm really enjoying this. 2016 I started doing my makeup my own, and 2018 I was on boom. ओके, जब 2010 की आप बात कर रहे हो तब इनिशियल स्टेज में अगर हम देखें तो मेकअप इंडस्ट्री को इतना ज्यादा अप्रिशिएट लोग नहीं करते थे. नहीं करते थे. इनफैक्ट हाँ. माय मॉम डैड वाज लाइक क्या करेगी, नहीं बनेगी. एंड आई वाज लाइक सीरियसली यही मतलब बनियों की फैमिली में तो इट वाज लाइक कि, कि नाइयों वाला काम. बिल्कुल बिल्कुल. तो वो टाइम पे अगर आपने जब सेटअप अपना लगाया होगा तो बहुत डिफिकल्ट रहा होगा घर वालों को मनाना. बहुत डिफिकल्ट रहा था बिकॉज माय एज यू नो माय मतलब बॉर्न एंड बॉटम इन बनिया फैमिली, तो उनको कन्विंस करना, उनको हाँ. समझाना, इतने बैरियर्स आए फेस इन माय लाइफ. अंडरस्टैंड. बट ठीक है, आज एक मेकअप आर्टिस्ट की एक अलग रेपुटेशन है. आज मेरे पेरेंट्स प्राउड फील करते हैं कि आजकल हाँ तो मेकअप आर्टिस्ट सेलिब्रिटीज बने हुए हैं. आज सेलिब्रिटी से कम नहीं है. तो बट वो इनिशियल स्टेज जो रही होगी, मैं समझ सकती हूँ कितना मुश्किल टाइम रहा That was होगा. honestly very crucial because my husband was bedridden totally for 3 years. ओके. एंड मोर ओवर एक लड़की जो MBBS कर रही है वो एकदम एकदम से makeup मेकअप में आर्टिस्ट आ में स्विच जाए, ऑन हो जाए तो right. आप सोच सकते हो कि कैसे कैसे सर्कमस्टेंसेस रहे. राइट. बट
I'm a God blessed child, I can say this, कि जो भी मैंने लाइफ में किया है मुझे उसमें सक्सेस हमेशा अच्छा मिले है। चलो बाय गॉड ग्रेस आपको आगे भी मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, आपकी ब्लेसिंग्स है ना, और हमारे ऑडियंस का लव है तो बिल्कुल जी बिल्कुल। सो जैसे हम बात कर रहे थे कि मेकअप आर्टिस्ट सेलिब्रिटीज बने हुए हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, है ना। इंस्टाग्राम पे आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं या फिर डिज़ाइनर्स रहते हैं। या तो लोग कपड़े देखते हैं या फिर आपका मेकअप देखते हैं ना। Of course, yes, because मेकअप आर्टिस्ट का इन्फ्लुएंसर बनने का रीजन ये है कि ब्रांड एक्चुअली नीड्स आवर ऑडियंस, राइट, एंड मोर ओवर व्हाट मेकअप आर्टिस्ट नोज अबाउट द मेकअप, उससे ज्यादा अच्छा तो कोई और बता ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बताओ कि रीजन क्या है कि जो मेकअप आर्टिस्ट हैं या डिजाइनर्स हैं आजकल खुद अपनी रील बना रहे होते हैं, खुद आगे आके, मतलब उनको ना मॉडल्स चाहिए ना क्लाइंट्स चाहिए, खुद ही लगे हुए हैं अपने कपड़ों की प्रमोशन और अपने मेकअप की। ओ हो, ये वाला स्मोकी लुक है जी, ये न्यूड लुक है। क्या कहते हो, क्या रीजन रहा होगा इसके पीछे? शालिनी, क्या होता है ना, आजकल का कंपटीशन इतना हो गया है, राइट, एंड इंस्टाग्राम पे एवरीवन वांट्स टू गेट बिजनेस। इंस्टाग्राम इज अ प्लेटफॉर्म राइट वेयरइन पीपल आर गेटिंग बिजनेस। तो आजकल का ट्रेंड ये हो गया, जो दिखता है वो बिकता है। तो इसलिए अब होता है खुद पहनो, खुद रील्स बनाओ एंड छोड़ो मॉडल्स को, खुद की ग्रूमिंग करो एंड और मुझे लगता है आजकल सब अपना इतना ध्यान रखते हैं, सब प्रिटी दिखते हैं और किसी को क्यों करना है, हम अपना बिजनेस खुद क्यों ना प्रमोट करें। और मुझे ऐसा लगता है यशिका, अगर जैसे हम अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं ना, कोई दूसरा नहीं कर सकता है। मोरओवर जो जैसा दिखता है वो वैसा बिकता है। बिल्कुल। इफ यू आर ब्यूटीफुल तो पीपल, एक होता है ना यार, ये लड़की खुद इतनी सुंदर है, हमें क्या बनाएगी, बिल्कुल, कपड़े इस पे इतने अच्छे लग रहे हैं तो हमारे कैसे लगेंगे। सो अभी क्या है कि कंपटीशन इतना टफ है दैट यू कैन नॉट रिलाई ऑन अदर्स। एक ये भी रीजन है कि अगर आप किसी को ब्रांड फेस बनाते हो, कल को that person can ditch you। अपने ब्रांड का फेस हो तो आप लाइफ लॉन्ग यू कैन अर्न मोर। जो ऑडियंस है ना वो कनेक्ट करती है आपसे। मैं भी यही बोलने वाली थी, एक डमी ने कपड़े पहने हुए और किसी आपके नोन ने या फिर एक मॉडल भी नहीं बोलूंगी, एक नॉर्मल डिजाइनर या मेकअप आर्टिस्ट है, मेरे लोग ज्यादा रिलेट करते हैं, ज्यादा रिलेट करते हैं। ऐसा लग रहा है तो हम पे भी बिकॉज़ उतना ही ग्रेसफुल लगेगा, इसको हम भी ऐसे कैरी कर सकते हैं। बहुत मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल मैंने देखा है जहाँ मेकअप आर्टिस्ट हैं पूरी दिन मतलब इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं, ये प्रोडक्ट ऐसा है जी, ये प्रोडक्ट, चाहे वो खुद यूज भी नहीं करते हैं, मानोगे ये बात? चाहे वो एक बार लगा के उसका डस्टबिन में जाना है क्योंकि पेड कोलैबोरेशन है भाई, मुझे इतना पैसा मिल रहा है। इसके बारे में क्या बताओगे अभी? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो मैं अपने ऑडियंस के लिए करती हूँ, आई नेवर डू लाइक द फेक प्रमोशंस। पहले हम लोग ब्रांड से, ऑब्वियसली पेड कोलैबोरेशंस हमें भी आते हैं, हाँ जी। वी यूज्ड टू ट्राई एंड टेस्ट द प्रोडक्ट। अगर हमें लगता है कि यस दिस इज वर्थ इट इनफ तो ही हम अपनी ऑडियंस को देते हैं। ट्रस्ट में गाइस, ऐसा ही है। यार पैसे मिल रहे हैं, कोई बात नहीं, घटिया ब्रांड है फिर भी हम प्रमोट कर देते हैं। उसमें क्या होगा शालिनी, आपको ऑडियंस एक बार ट्रस्ट करेगी, ठीक है, बट सेकंड टाइम क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी, यार इसको तो पैसे के लिए कुछ भी करना है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आजकल लोग भी समझदार हैं, उनको सब समझ में आता है। बिल्कुल, आजकल ऑडियंस बहुत समझदार है, उन्हें पता है कि ये पेड कोलैबोरेशन है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। तो सृष्टि आप बताओ, बीइंग अ डिजाइनर, जैसे आप सिर्फ अपना ही ब्रांड हमेशा कैरी करते हो या समटाइम्स ऐसे होता है कि आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और आपको लगा यार ये आउटफिट बड़ा अच्छा है, तो आप कभी किसी दूसरे डिजाइनर को अप्रोच किया आपने? बिल्कुल, कई बार ऐसा आई वुडंट लाइक कि नहीं, लाइक देयर आर लॉट ऑफ ऑनलाइन रीसेलर्स। कई बार क्या होता है ना, आपको कोई चीज अच्छी लगती है तो आई नेवर रिग्रेट, आई नेवर गो बैक कि नहीं यार ये मेरे ब्रांड का नहीं है तो मैं नहीं पहनूंगी। व्हाई नॉट यार, मेरा तो माइंडसेट ऐसा है कि वी शुड ऑल all designers should come up together and promote each other। मैंने तो बहुत सारे डिजाइनर्स और मेकअप आर्टिस्ट को देखा है जो मेकअप भी किसी और का करवाते होते हैं, शूट हो रहा है और आउटफिट भी किसी और का पहना हुआ है, और बड़े रिनाउंड नेम्स हैं हमारी इंडस्ट्री में जो दूसरों के कपड़े पहन के उनको प्रमोट कर रहे होते हैं अपने पेजेस पे। नहीं, प्रमोशन के लिए तो नहीं हाँ, मुझे ऑब्वियसली आपका ऑडियंस डाइवर्ट हो जाता है, राइट, बट देन व्हेन आई लाइक समथिंग, अब मैं कहीं जा रही हूँ, मुझे किसी डिजाइनर का कोई लहंगा पसंद आ गया एंड आई डोंट कस्टमाइज दैट, तो आई विल बाय इट ना। तो मेरे साथ ये है कि नहीं, मैं खरीद लेती हूँ। अगर मैं जिस चीज में नहीं हूँ, आई एम नॉट इनटू ब्राइडल, आई एम नॉट इनटू द gowns and everything, so what I do, I purchase it from outside only। So moral of the story कि अपना ब्रांड पहले है ही, बट अगर हम किसी और को भी प्रमोट करते हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं है। कोई बुराई नहीं है क्योंकि लोग हमारा काम तो रेगुलर देख ही रहे हैं। वी टॉक अबाउट द मेकअप, वी टॉक अबाउट द डिजाइंस, तो लोगों को ऑलरेडी पता ही है। अगर हम किसी और को भी प्रमोट करें तो इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस। जिसके पास जाना है वो जाना ही जाना है, कोई किसी का बिजनेस किसी को स्टॉप नहीं कर सकते। एंड मोर ओवर यार, इट्स ऑल अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट, राइट। एक सारी वुमेन इकट्ठे होकर अगर एक दूसरे को एम्पावर करती हैं तो वो ज्यादा अच्छा आउटकम निकल के आता है। राइट।
सो गाइज यू आर ऑलवेज टॉक ऑफ द टाउन. लोग आपके बारे में बहुत अच्छी बातें करते हैं तो आपके बारे में कुछ बुरी बातें भी होती हैं. तो मैं पहले सृष्टि से स्टार्ट करूंगी. हमारा सेक्शन है कुछ तो लोग कहेंगे. तो आपके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आप बहुत सारे सेलिब्रिटीज के कपड़े कॉपी करती हैं और वो अपने पेज पे डाल के बहुत नोट छाप रही हैं. क्या कहना आपके इसके बारे में? देखो नोट तो कहूंगी छाप रही हूँ. पैसे की कमी नहीं है. स्टोर आपने मेरा देखा ही है. नहीं जोक्स अपार्ट, क्या होता है ना, हमारे पास ना ऑडियंस की ही रिक्वायरमेंट आती है, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट आती है. आप आइकन जो होते हैं उनके, दे वांट कि हम ना उसी का रिलेटेड कुछ हमारे को आप बना के दे दीजिए. हर किसी की ना एक वो नहीं होती रीच उन डिजाइनर्स के कपड़े पहनने की. तो व्हाट वी डू इज वी ट्राई एंड मेक इट एज इट इज जैसा फॉर द क्लाइंट्स, ताकि हर कोई अपने बजट में उस चीज को कैरी कर सके. There is no need to, तो अगर आपको कभी ऐसा हुआ कि किसी डिजाइनर ने, किसी बड़े डिजाइनर ने आपको कहा कि नहीं आपने मेरा कॉपी किया या सोशल मीडिया पे डाला, तो आपको क्या लगता है उस टाइम आपका क्या रिएक्शन होगा? देखो पूरी तरीके से कॉपी तो कोई चीज हम करते ही नहीं. अच्छा, एक होता है इट्स लाइक कि वी टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दोस आउटफिट्स. फॉर एग्जांपल पफ स्लीव्स है तो हम और अच्छी पफ स्लीव्स दे देंगे. फैब्रिक एनीवेज सेम नहीं होता. सो ऐसा नहीं है कि वो डिट्टो कॉपी होती है, बट यस इंस्पिरेशन हम उससे लेते हैं. सो ऐसा कभी भी नहीं होता कि बिल्कुल कॉपीड आउटफिट कर दिया. अच्छा, यस इंस्पिरेशन वी डू टेक. तो कॉपी तो कभी-कभी तो कॉपी बनती है ना, कभी-कभी तो बनती है. हां थोड़ी क्योंकि तो चलती है. क्योंकि अगर आपका जो क्लाइंट मांगता है वो आपको देना ही है. सो यशिका, आप पे तीखा वार है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सेलिब्रिटी समझती हैं और समटाइम्स ऐसा भी हुआ है कि लोग आपसे मिलने आते हैं और आप मतलब उनको वेट करवाती हैं बहुत ज़्यादा. ये ऐसा मैंने रिसेंटली अभी आपके बारे में सुना है. इज इट ट्रू? वेरी बैड. सेलिब्रिटी तो मैं हूँ, नो डाउट. इसमें कोई डाउट नहीं है. और दूसरी बात, मैं लोगों को जनरली वेट नहीं कराती हूँ. रीजन बीइंग मेरे पास काम इतना ओवरलोडेड होता है. क्योंकि आपकी रिसेंटली कंप्लेन पर्सनली किसी ने मुझे की है कि आप जब भी करोगे आप प्लीज ये क्वेश्चन जरूर पूछना कि उनको किस चीज का इतना प्राउड है जो वो हमें इतना वेट करवाती है. नहीं गाइस, देयर इज नथिंग लाइक दैट. एक्चुअली क्या होता है, मैं ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट. आई डू इवेंट्स, आई डू शूट्स, आई डू मूवीज. तो जनरली क्या होता है कि हाँ टाइम मैं दे देती हूँ. इट्स लाइक 2 o'clock, बट ब्राइडल का टाइम अगर 1 o'clock है, वी कैन नॉट मतलब इम्पोज देम कि वो टाइम पे आए. ब्राइड के घर में रिचुअल्स होते हैं. बोला गया है कि ब्राइड आपकी वजह से बहुत बार लेट पहुंचती हैं वेन्यू पे. ऐसा कब हुआ? नहीं है. होता क्या है, जैसे अगर ब्राइड का टाइम 1 बजे है, इफ ब्राइड यूज्ड टू कम बाय 3:30, तो मैं एक सिंगल ब्राइड एक डे में नहीं होती, मेरी मल्टीपल ब्राइड्स होती है. ओके, ठीक है. तो टाइम टू टाइम क्लैश करता है. अब जिसका काम मैं ऑलरेडी कर रही हूँ, मैं उसका छोड़ के तो सेकंड वाले का नहीं करूंगी ना. तो ऑब्वियसली हम अपने जो भी हमारे मैनेजर्स होते हैं एट द टाइम ऑफ बुकिंग, दे ऑलवेज यूज्ड टू प्रिसाइज द टाइम कि मैम यू हैव टू कम बाय दिस टाइम. फिर लोगों अगर क्लाइंट खुद ही लेट आ रहा है तो इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है ना. कोई फॉल्ट नहीं, मैं इनोसेंट बच्चा हूँ. यशिका, एक चीज और बताओ कि जैसे सैलून ऑनर्स हैं तो सैलून में डुप्लीकेट चीजें भी यूज होती हैं. आपको पता है कि कैरेटिन आजकल यूज हो रहा है, स्मूथनिंग हो रही है, बोटॉक्स हो रहा है और बहुत सारी डुप्लीकेट चीजें आ रही हैं. बिल्कुल तो यूज होती है. आप क्या कहोगे अगर मैं आती हूँ आपके सैलून में, तो आप क्या कहोगे कि किस तरीके का हमें ओरिजिनलिटी मिलेगी या मिक्स भी मिलेगा या कैसा रखते हैं? देखो, जो लोग डुप्लीकेट यूज करते हैं वो अपना बंडाधार खुद ही करते हैं. बिकॉज राइट, गूगल ने आजकल सब कुछ, यूट्यूब ने सब कुछ इतना ओपन कर दिया है कि लोगों को गलत और सही की बहुत अच्छे से समझ है. मोरओवर किसी को भी आप ट्रैप करोगे ना, एक सिंगल टाइम कर सकते हो. अगर आपको एक लाइफ लॉन्ग बिजनेस चाहिए तो यू हैव टू बी फेयर विद द पीपल. आज किसी के आप बाल खराब कर दो, किसी की स्किन खराब कर दो. क्यों हो रहा है कि मतलब बहुत सारे सैलून्स डुप्लीकेट सिर्फ अपनी कॉस्टिंग कम करने के लिए? बेसिकली क्या है गाइस, आजकल ना लोगों क्या कंपटीशन इतना बढ़ गया, रेंटल्स आर सो हाई. राइट, ठीक है. उनको लगता है कि हम फुटफॉल बस कैसे भी बना लें, तो दे यूज्ड टू गिव द प्रोडक्ट्स उस मार्जिन प्राइस पे जो उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है. इतने छोटे से अमाउंट में स्मूथनिंग भी दे रहे हैं, कैरेटिन भी दे रहे हैं, दोनों चीजें. तो उसमें क्या होता है, दे ऑल यूज द चाइनीज प्रोडक्ट्स. बट उससे क्या होता है कि हमेशा कस्टमर की आप लड़ाई देखेंगे. मोरओवर कस्टमर, कई कस्टमर होते हैं जो बोल नहीं पाते. राइट, अल्टीमेटली आप अपना कस्टमर लूज कर देते हो. और एक कस्टमर आपके 1000 कस्टमर खराब करता है, ये भी एक फैक्ट है. तो गाइज अपने जो भी सैलून ऑनर्स हैं, प्लीज ओरिजिनल प्रोडक्ट्स यूज किया करो, नहीं तो आप आने वाले टाइम में अपने क्लाइंट्स लूज कर दोगे. अगर आपको किसी के साथ भी, चाहे वो आपका कोई भी रिलेशन है, अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग कोई भी रिलेशन बनाना है तो यू नीड टू बी फेयर. राइट, और क्लाइंट आज के टाइम में भगवान है. क्लाइंट के पास हजारों ऑप्शंस है. राइट, आपके पास ऑप्शंस नहीं है. सो यू हैव टू बी फेयर विद योर क्लाइंट्स. राइट. सो गाइज वी हैव नेक्स्ट सेक्शन
रैपिड फायर राउंड गाइस, मैं आपसे 2 क्वेश्चंस बहुत जल्दी पूछने वाली हूँ, तो आपको आंसर करने हैं। यशिका, योर फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट? इंडियन और इंटरनेशनल? इंडियन। मैं खुद की फेवरेट। ओहो, कोई तो होगा यार, ऐसा बनना है। सबको मेरे जैसा बनना है। क्या बात है। योर फेवरेट डिजाइनर? अब आप ये मत बोलना मैं खुद की फेवरेट। मेरा एक इंटरनेशनल फेमस लाइक फेवरेट डिजाइनर है, दैट्स माइकल किनको, क्या बेस्ड इन दुबई। हाँ। जब भी मैं गाउन्स में लॉन्च करूंगी कुछ, तो मैं उससे इंस्पिरेशन लेके करूंगी। क्या बात। एंड आई एम गोइंग टू रॉक द दिल्ली इंडस्ट्री। चलो, होपफुली आप जल्दी से लॉन्च करो और हम भी आपके सुंदर कपड़े पहने। बिल्कुल। सो गाइज, आप लोग मूवीज भी देखते हो, टाइम निकाल के अपने कोई स्टार्स को भी देखते हो, अपने दोनों फेवरेट हीरो बता दो जल्दी से, फटाफट। शाहरुख खान। क्या बात है, दोनों फ्रेंड्स का सेम है। इनफैक्ट मेरा भी शाहरुख खान है। मतलब सीरियसली मेरा चाइल्डहुड क्रश, एग्जैक्टली। डीडीएलजे वाज लाइक, मैंने कितनी बार देखी है, कुछ होता है डीडीएलजे, दिल तो पागल है, मतलब नॉन स्टॉप पिक्चर्स देखी। और मुझे ऐसा लगता है 90s वाला बॉलीवुड लाइफ में दोबारा कभी नहीं आ सकता। वो रोमांस दोबारा नहीं आएगा, वो फीलिंग्स दोबारा नहीं आएगी। सो गाइस, इट वाज लवली कन्वर्सेशन विद यू। मजा आ गया, ऐसे लगा ही नहीं कि हम इंटरव्यू कर रहे हैं। बातें करते करते आज हमारा इंटरव्यू हो गया। तो सी यू सुपर सून एट समवेयर एल्स। थैंक यू। बाय बाय।